Head, University Business Studies, GNDU College, Jalandhar. Dr. Ajit Puri, Convener, IIC. Dr. Manav Agarwal, also the coordinator in IIC. Members of faculty, non-teaching, and my dear students. Today we are here to witness a very enthralling and interesting lecture on business proposition fit. And none other than Dr. Ashish Arora would have been more suitable to give this delivery. I welcome you, sir, from the core of my heart. You have spared your invaluable time to be with us. So students, IIC has been taking this initiative to bring or make you ready for the outside world. Whenever you go out or you are on Google, one or the other time you find a buzzword startup, entrepreneurship, business. And even our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, is always insisting that you be a job provider rather than you be a job seeker. So with this generation coming up and such a hype around this startup, Dr. Ashish Arora will definitely pave the way towards a successful business venture. I place on record my thanks, sincere thanks to Dr. Rajesh Kumar, Principal DAV College Jalandhar, who would have come here, but he already has engagements in the college. It is his leadership and vision that we have been given this platform of IIC, Institution Innovation Council, in our college. So this has been a great decision, and he has put his utmost efforts to bring before you the top team of the college to guide you around and how you can achieve your goal or your ambition in life. Dr. Ajit Puri, being the convener of the IIC, has been doing a wonderful job in organizing such talks, and people like Dr. Manav Agarwal are very instrumental in organizing such kind of deliveries, bringing people of eminence from academia and industry with us, so that we are able to get some more apart from our regular curriculum. So I hope this talk would be really an eye-opener for you, how you are going to bring your idea into reality. And I am also quite excited because my memory lane goes quite back when Dr. Ashish was here in DAV College and he was teaching in the Faculty of Management as a professor through GNDU deputation. Now he is currently heading the University Business School in GNDU College, and he is doing wonders. I also remember that I attended an FDP on entrepreneurship way back in 2014. So I was just correlating that it coincides with the tenure of our worthy Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And from that very time, we are quite hearing the term startup. And he has such a vision. I was just talking in a casual note that you had a vision before Mr. Modi, that you taught us entrepreneurship way back in 2014. And he did his best to coordinate. He was the coordinator of the event, and he brought the best of academia industry amongst us, who gave us what exactly is going to happen. And now after a period of 9 years, we are seeing more and more startups coming now and then. So I hope this lecture is going to be very interesting and it will keep you engaging. So as per our tradition, we are going to start the event with the DAV anthem. So kindly stand. अविरल निर्मल सलिल सदय ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिर्मय हो चहु दिशि उद्घोष अभय दिए विजय जय दिए विजय जय प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए विजय जय दिए विजय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंसराज से त्याग शक्ति ले धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय दिए विजय जय दिए विजय जय सुख समृद्धि इसकी लहरें प्रेम
शांति इसके तट ठहरे, सघन शांतिमय प्रबल कांतिमय, लिए अटल निश्चय, दिए विजय जय, दिए विजय जय। Before moving further, I would like to invite Dr. Ajib Puri, Professor Namrata Kapoor, and some student representatives to kindly come forward and welcome our speaker of the day, Dr. Ashish Arora. आगे बच्चे अंदर। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Now I have an exhaustive biodata of Dr. Ashish Arora, his illustrious achievements. I would not go into the details. वो 5 मिनट अपन डिस्कस कर लेते हैं कर लेंगे पर कुछ मैंने लग रहा है करना चाहिए फॉर मोटिवेशन कुछ नहीं I would like to do it. Dr. Ashish Arora is gold medalist in MBA from GND. So a big round for the gold medalist. He is PhD in finance from Punjabi University Patiala, and as I told you, he is presently working in GNDU College as head University Business Studies. He has a long illustrious career of 22 years, and he has successfully guided 4 students for PhD. I don't know whether he had added Four only till now. 4, and 4 are still pursuing PhD under him. So he is managing time for both academia as well as industry, which is quite great. He has over 24 research papers in UGC and Scopus, and he is a member of many illustrious institutions like EDI, IIM Bangalore, ISB Mohali, Onrika, HDFC, mutual funds. He has been taking up entrepreneurship awareness camps, and I already told you that he has been organizing these faculty development programs under his coordinatorship, and it is definitely a great experience. And today also, I believe it is going to be a great session. So without, I welcome Dr. Nishchay Behan, who is with us for this session. He was into his class. So without taking much of a time between me and Dr. Ashish, I would like to welcome our honorable guest to please take over. थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू विशाल सर Vishal sir didn't tell you one thing that we used to play cricket together in JNU, and he was a very good sports person. And since from the other department, he was my competitor. That I remember. So welcome all of you, and very good morning to all of you. And thank you once again to Dr. Nishchay Behan, Dr. Rajiv, Dr. Vishal, and Dr. Manav for inviting me here. You have listened me earlier also, yes or no? How many of you have? I discussed business model canvas standing over here 6 months back. No, you have not. You have not heard me? Okay. Maybe the audience was different. Audience was. Those were actually the passing out students. Okay, right, Final sir. year. Right, sir. So this is the new session now. Right, sir. So I will be covering up one basic tool which is required in order to understand that how we are supposed to design our product. Right? Like I assume that all of you are having some idea. ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में जिसके पास कोई आइडिया ना हो, ठीक है कि नहीं? चाय पे बैठो, किसी के साथ बातें करने लगो, या किसी को कहो कि हाँ बता भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो ऐसा कोई भी दुनिया में नहीं होता जिसके पास कोई ना कोई आइडिया ना हो। सिर्फ फर्क इस चीज़ का होता है कि हम उस आइडिया के बारे में कितने सीरियस हैं। राइट? कई बार सीरियस ज़्यादा हो जाते हैं तो हम एक अंबानी जैसी कंपनी खड़ी कर देते हैं जिसकी वैल्यूएशन आज की डेट में पता नहीं कितने $1 बिलियन है,
और अगर हम सीरियस ना हो तो फिर हम कुछ भी नहीं करते, हम सारी उम्र जॉब करके एक अमाउंट इकट्ठा करके और अल्टीमेटली रिटायर हो जाते हैं और फिर हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उस आइडिया को कितना ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब भी हम कोई भी आइडिया के बारे में सोचते हैं या डिस्कस करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बातें आती हैं और सबसे पहले ये बात आती है कि ये आइडिया अच्छा है कि नहीं है। ऐसा लो तो कैसे पता चले आइडिया अच्छा है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। हाँ, वो लास्ट वाले जो दोनों है ना वो सबसे आगे आ जाओ, दोनों लास्ट वाले। मुझे लगता है आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनेगी तो आप आ जाओ बेटा, यू कैन कम हियर। लास्ट बेंच। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सो जब भी हम कोई भी आइडिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज मैं वही कर रहा था कि यही आता है कि हम उस आइडिया को वो अच्छा है आइडिया के नहीं है। तो कैसे पता चले कि आइडिया अच्छा है कि नहीं है? हाँ जी, एनीबडी यू कैन रेज हैंड एंड टेल मी, कैसे पता चले? मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अब वो मैं कैसे पता करूँ कि वो आइडिया अच्छा है या बुरा है? या बैठ के वो यूजेबल है कि नहीं, कुछ रियल वर्ल्ड कैसे पता चलेगा? तो उसका इम्प्लीमेंटेशन देख के या उसके जो सेम है 367 हाँ जी बोलो, उसके सॉरी। जो सेम टाइप्स का आइडिया सेम पे इधर उधर सर्च करके कि ये है पर ये market नहीं में। कहते कि अगर सेम तरह का आइडिया है तो वो तो फिर आइडिया ऑलरेडी बन चुका है। नहीं मतलब उसकी तरह या फिर ये ऑलरेडी है कि नहीं, इसकी एग्जिस्टेंस मतलब इसका काम है कुछ कि नहीं। कैसे पता चलेगा? वही मैं फिर उसका वही पूछ रहा हूँ। व्हाट्स योर गुड नेम? सुरेश कुमार। सुरेश, गुड। बट मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि ये आइडिया अच्छा है कि नीड से, नहीं? रियल लाइफ नीड से। कैसे पता चलेगा? रियल लाइफ नीड कैसे पता चलेगी? लोगों के साथ सर्वे करके। लोगों को पूछ के, है ना? किन को पूछोगे? सर नॉर्मल जनरल पीपल, जैसे कि हमारे पड़ोस में कोई टीचर है, कोई लॉयर है, तो उनसे सर्वे उनसे पूछ सकते हैं तुम्हारे कि वहाँ पे आपको सबसे पहले टीचर ही क्यों आया? पूछने के लिए। teacher। मतलब आदत पड़ी हुई है भी हर एक चीज टीचर से ही पूछनी है। नहीं, चलो गुड। यार हम मदर टीचर हैं। माइट बी दैट, कुड बी दैट। सही है, बिल्कुल सही है। Society You are also analyze right। करके, हाँ जी, society में इधर बेटा? उधर सोसाइटी में पता पता करके, है ना? क्यों सोसाइटी में क्यों हम ऐसे पता करेंगे? क्यों पता करेंगे? सर यूज उन्होंने ही करना है। यूज उन्होंने नहीं करना। हाँ, वेरी गुड। और कोई? यस, सर्विसेज उन्हें देनी सर्विसेज उन्हीं को देनी है ना? हाँ जी बेटा, डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी डिमांड है। कैसे पता चलेगा मार्केट में कितनी डिमांड है? लोगों से There are always surveys. चलो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। यस सर। एप्पल 15 आने वाला है, यस सर। आने आईफोन आईफोन 15 आने वाला है। Yes, sir. क्या फीचर आएंगे, आने चाहिए उसमें? एनीबडी, क्या कौन से फीचर होने चाहिए उसमें? किसी के पास है एप्पल का आईफोन सर के छोड़ के? और किसी के पास आईफोन है? चलो आईफोन देखा है, Yes, मम्मी sir. पापा ताया चाची मामा फ्रेंड किसी के पास तो देखा होगा। यस सर। यस सर। नो, तो क्या होना चाहिए उसमें? अब नया फीचर कैसा कौन सा चाहिए हमें? रेज योर हैंड एंड टेल मी। Advanced हो, modified एडवांस हो, Modified. उसकी क्या डेफिनेशन होती है एडवांस की? तुमने स्टीव जॉब तो बेचारा मर गया, टिम कुक को बताना है कि भैया ये फीचर डाल दे इसमें। क्या क्या कहोगे, क्या डाले इसमें? तो मैं चाहूंगा कि जो उसके एग्जिस्टिंग फीचर्स है ना, जैसे कि आईफोन 14 प्रो मैक्स है, तो वो थोड़ा हैंडी नहीं है, वो काफी बड़ा है हाथ में। छोटा हो जाए? हाँ, थोड़ा सा उसको श्रिंक कर दो उसका साइज। मैं Features एडवांस की same बात है। कह रहा हूँ, आप डी स्केल की बात कर रहे हो। चलो कोई नहीं, इट्स गुड, दैट इज द कस्टमर रिस्पांस। चलो गुड, व्हाट एल्स? फीचर बताओ मुझे। तुम तो मतलब यस, Sir, camera quality. टाइप सी वो आ गया हुआ है ऑलरेडी। चलो आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैक में डाल दिया तो इसमें डालना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो कोई ऐसा फीचर बताओ जो दूसरे फोन्स में ना हो, या कोई ऐसी चीज हो जो देख के गए। यस यस मैम। सर कैमरा क्वालिटी और बहुत कैमरा ज़्यादा क्वालिटी बढ़िया और इम्प्रूव होनी चाहिए। चैट जीपीटी डाल। चैट जीपीटी उसमें डाल दो, AI वो enabled सॉफ्टवेयर होना का चाहिए। पार्ट आ गया। AI enabled। Actual में the problem is this, that 90% of the user doesn't know what I want. राइट। जब हम कस्टमर से जाके पूछ रहे हैं ना, जैसे आपने कहा, सुरेश ने कहा कि हम जाके कस्टमर से पूछेंगे, कस्टमर को क्या पता है कि मेरे को क्या चाहिए? और अगर ये सोच के एप्पल या सैमसंग या जो दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं अगर अपनी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती, तो मे बी कभी वो और एडवांस फीचर डाल ही ना पाती। सैमसंग ने ड्यू फोल्ड वो फ़ोन लॉन्च किया,
किससे पूछ के किया? लोगों ने बड़ा कुछ कहा, ये तो एडवांस आ गया है, अभी तो इसके लिए मार्केट रेडी नहीं है, बट इट इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स लाइक एनीथिंग। और उसको फॉलो करने के बाद ओप्पो, वीवो सारे लॉन्च कर रहे हैं। इट हैज बिकम अ बज़वर्ड, इजंट इट? सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम कहते हैं कि हम कस्टमर से पूछ लेंगे, पर क्या कस्टमर को उसके बारे में पता होता है? सेल्फ यूज करके थोड़ा अच्छे इम्प्रूव। आप भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं जज कर सकते, क्योंकि आप भी तो कस्टमर हो। हम आज जिस जर्नी के थ्रू पास करेंगे ना, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि जब आपने किसी भी कस्टमर से किसी नई प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना है तो क्या पूछना है, कैसे पूछना है, और उसको हमने इंटरप्रेट कैसे करना है। यू आर गेटिंग द पॉइंट? दैट इज व्हाट बेसिकली आई एम गोइंग टू फोकस अपॉन। हम कहते जरूर हैं कि हम कस्टमर से पूछ लेंगे, कस्टमर को नहीं पता, फ्रैंकली नहीं पता कि मेरे को क्या चाहिए। मैं आपसे आप पूछ लूं, आने वाली कारों में आपको क्या चाहिए, फ्यूचर कार्स में आपको क्या चाहिए? तो मैंने अपने बेटे से पूछा, वो ही इज 9 years old, तो मेरे ख्याल में उसने 4-5 ऐसे फीचर गिना दिए जो कार्टून्स में वो देखता होगा, तो उसकी विजन वैसी बन गई है कि फ्लाइंग कार्स होनी चाहिए, और वो उसमें कुछ सेफ्टी मैकेनिज्म ऐसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। द ब्रॉडर द विजन इज, द ब्रॉडर यू कैन टॉक अबाउट न्यू थिंग्स, बट द क्वेश्चन ओवर हियर इज, कैन आर वी रेडी फॉर, और इज आवर इंडस्ट्री रेडी फॉर फ्लाइंग कार्स राइट नाउ? आंसर इज नो। अभी गैप है, टाइम है उसमें, राइट? तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब भी कोई स्टूडेंट या कोई एंटरप्रेन्योर कोई भी वेंचर स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, तो पहला क्वेश्चन उसके दिमाग में ये आता है कि मेरा आइडिया अच्छा है कि नहीं है, और वो कहता है कि ये मैं कहाँ से वैलिडेट करूँ? तो उसके लिए ही गोज टू द कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, जो कि हो सकता है, बट द चैलेंज इज दैट द कस्टमर डज नॉट नो इट। ओके, सो वी विल डिस्कस दैट। It's on the desktop. उसको उठा ही दें सर। हाँ जी सर। Okay, this is the title of my PPT, that is Value Proposition Canvas. I've already been introduced. I am MA with MBA with PhD in Finance. I am from JNU College, Jalandhar, right? सबसे पहले we need to understand that why we need an idea or why do we need a new product or service, right? There is a word which is very popular, which is called innovation. Are you aware of that? Yes. Very frequently used. और ये एक बात आप गांठ बांध के रख लो, that without innovation there is no entrepreneurship. Yes, yes. और अगर वर्ड स्टार्टअप आता है ना, तो स्टार्टअप इनोवेशन के बिना नहीं है। Yes. अगर आप वही चीज कर रहे हो जो बाकी भी कर रहे हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर लेट्स से
आपने एक प्रोडक्ट या एक ऐसा वेंचर लॉन्च किया जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग वेंचर के साथ मिलता जुलता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. बट द पॉइंट इज दैट व्हाई शुड द कस्टमर कम टू यू? Yes. The customer will come to you only when you are going to have some Unique. innovation or uniqueness in your product or service. So what is innovation? पहले उस चीज को समझते हैं. Creation of a new product or service or component which fulfills unmet need. मेरी ऐसी कोई नीड जो फुलफिल हो रही हो इस प्रोडक्ट और सर्विस के लॉन्च होने के बाद जो ऑलरेडी नहीं हो रही. फॉर एग्जाम्पल उबर, ओला, what need did they fulfill? Need of transportation, cheaper transportation, local transport, using technology, right? All those needs were fulfilled, right? Or it is fulfilling the need in a better manner. Zomato और Swiggy के लॉन्च होने से पहले होम डिलीवरी ऑप्शन होती थी, ऐसी बात नहीं है. मनी ढाबा, शास्त्री मार्केट वाला फोन पे 200 रुपए के ऑर्डर को होम डिलीवर करता था. तो जोमेटो और स्विगी ने क्या किया? चैलेंज ये आया कि अगर मेरे को आर के ढाबा नकोदर रोड से खाना ऑर्डर करना है और अगर मेरा घर जो है वो मकसूदा पे है तो मेरे को वो ऑर्डर वो डिलीवर नहीं करेगा. वो कहता था सर ये हमारे एरिया के बाहर है, उसके पास 1-2 बंदे हैं डिलीवरी के. इट वॉज अ चैलेंज फॉर हिम. आज की डेट में जलंधर के किसी भी कोने में आप बैठे हो, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम एनी रेस्टोरेंट एंड इट विल बी डिलीवर्ड एट यू. व्हाट इज हैपेंड? It is fulfilling one need of ours in a better manner in comparison to जो पहले किसी और तरीके से fulfill होती थी. Yes or no? That's it. That is innovation. Remember that. Innovation में ये point होना बहुत जरूरी है कि आप उस need को better तरीके से fulfill करो. कुछ examples देखते हैं. PVR. Have you heard of it? Yes, sir. Obviously. अब तुम्हारी तो जनरेशन ही PVR में पैदा हुई है, नहीं? तो क्या फर्क पड़ा है पुराने थिएटर और नए थिएटर में? Who will raise hand? Who will tell me? वैसे ये क्वेश्चन है विशाल सर से पूछते हैं हम. विशाल सर, पुराने थिएटर और नए थिएटर में क्या फर्क है? सर पुराने थिएटर्स में ना सीट्स ऐसी होती थी, कई बार चूहे वगैरह भी घूम रहे होते ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो तुम्हें नहीं पता. मैं गए वहाँ पे उसके सीट के अंदर कई बार होता था नीचे से पोकिंग हो रही होती थी. हम कहते थे ये क्या है? वो देखते थे बीच में चूहा घुसा हुआ है. ठीक है. देन देयर वाज नो एसी, राइट? फिर टिकट मिलने पे सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं. टिकट मिल जानी, दरवाजे पे जाके खड़े होते थे जहाँ पे पहले 100 बंदा होता था. जैसे खिड़की खुलती थी, सॉरी दरवाजा खुलता था, धक्का पड़ता था, हम सारे अंदर, और उसके बाद हम ऐसे जाके बैठते थे. इधर वाली सीट मेरी है, ये भी मेरी है और ये 5 मेरी है. अब ऐसे नहीं करना. नाउ यू आर रिलैक्स्ड. नाउ यू गो इनसाइड, यू एंजॉय द मूवी. Ticket number is already with you. Seat number is there with you. You order fresh popcorns, fresh cold drink. हाँ महंगा है वो अलग चीज़ है. बट पहले पॉपकॉर्न होता था वो पता नहीं कब के 15 दिनों का बना होता था, उसके बाद पता नहीं पेट खराब होने के चांस होते थे. सो दिस इज इनोवेशन. क्या मेरी मूवी देखने की नीड पहले फुलफिल हो रही थी? हो रही थी, बट नॉट इन बेटर मैनर. PVR हैज चेंज्ड इट. इट्स एन इनोवेशन. क्या ये? Sir, mobile. Which mobile phone? iPhone. This is iPhone. What revolution or what innovation iPhone brought? Yeah. What's your name? Sir, Akshay. Yeah, Akshay. For the first time we had a touch in the phone. First of all, iPhone 4 was the first ever phone which was launched with a touch in the phone. So that is what basically was the revolution. And after that, the whole industry changed. The button phones went out, and we had only the touch phones. Do you identify the car? Nano. Yeah. Was it an innovation? Yes. What innovation was it? Sir, cheapest. Cheapest. Tata, I'll tell you the real story about Nano. This was the first ever car made in the history of the world where the price of the car was fixed before the launching of the car. Normally what happens is companies made cars, then they add some profit margin कि चलो जी 10 लाख की कार बनी है, कॉस्ट आ रही है, इसमें 20% प्रॉफिट ऐड कर दो, 10% डीलर मार्जिन ऐड कर दो, 30% ऐड हो गया, टोटल प्राइस इज 13 lakhs. But this was the first ever time the car was made with a price beforehand. This is called as the process of reverse engineering. That they had to design everything
in order to make sure that we should not exceed the price of 1 lakh. उसमें 10,000 पे प्रॉफिट भी होना है, याद रखना. यानी कि 90,000 80,000 की कार है. This was the innovation. Okay? दिख रहा है? पहचान लिया होगा. ओला, उबर, you know that all. क्या है उसमें वैल्यू क्या मिलती है हमें ओला और उबर में क्या फायदा है? चलो गिनाने शुरू करो. कंफर्ट नंबर 1, वेरी गुड. व्हाट एल्स? प्राइवेसी. ये अकेला ही है बस, और कोई नहीं ओला उबर पे बैठा. प्राइवेसी. व्हाट एल्स? Quick service. क्विक सर्विस. वेरी गुड मैम. व्हाट एल्स? Anytime, anywhere. एनी टाइम एनीवेयर. एग्जैक्टली, एक्सेलेंट. आपको रात को 10 बजे टैक्सी वाला बंद हो जाता है, उसके बाद कहता है जी मैं नहीं आ रहा. ओला और उबर वाला कभी मना नहीं करेगा. हाँ, ऑब्वियसली देयर आर सम इश्यूज आर देयर, बट स्टिल दोस आर मैनेजेबल. व्हाट एल्स? सेफ्टी. वेरी गुड. Competitive price. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग. सबसे बड़ा पॉइंट क्या है जो जहां पे उन्होंने टैक्सी वालों को रिप्लेस किया? सबसे बड़ा पॉइंट सर कि जहां हमें जाना वहां पे exactly point to point travel. That is the biggest value which Ola and Uber have added. पहले आपको टैक्सी लेनी पड़ती थी, वो कहता था जी मैं जहां मर्जी ले जाओ पर मैं 2,000 रुपये लूंगा. अब क्या है, मैं अटारी बाजार जा रहा हूँ 120 रुपये लग रहे हैं, ऊपर से 20% डिस्काउंट भी लग रहा है. अब वो कहता है अगर आप इससे पे करो तो आपको 20% और मिलेगा. You are getting the point. So all these value additions are there, but the biggest value addition is that is the point to point services. Is that clear? So Yes. this is what basically how they have fulfilled the need in a better manner in comparison to the That's existing players, and that is why it has become so successful. ये तो तुम्हारी एज की इनोवेशन है, ये तुम ही लेके आए हो. Exactly. What is it? Selfie. क्या हुआ इससे? What has selfie brought change into the telecom industry? सर में थर्ड पर्सन की नीड नहीं होती. थर्ड पर्सन की नीड नहीं होती. चलो फर्स्ट सेकंड की भी नहीं होती, फर्स्ट से ही काम चल जाता है. वेरी गुड. व्हाट एल्स? बच्चे बिजी हो गए जी. बच्चे बिजी हो गए. बच्चे तो सर मोबाइल फोन आते ही बिजी हो गए. Front camera, light improving and flash. It has changed the market. With a flash The front cameras are now stronger and flash also. and flash also with comparison to the back camera. Right? और इससे और भी कुछ चेंज हुआ है? I think it has added happiness to, because otherwise it was not possible to take you to take. Exactly. Easily. You don't need a camera. Now you can So- actually live. You can see that what you are. Whenever a youngster is going to buy a phone, Yes. first of all he or she is asking what type of front camera it has. This is the point. Oppo and Vivo became successful only because of this factor. And शीर्ष सर जो आपने पॉइंट्स अभी कहे हैं, लेट मी एक छोटा सा Surely, sir, please. इसमें कल मैं पीवीआर जा रहा था, there's new PVR opened in Friends Theatre. हाँ जी सर. तो उसके बाद मैंने एक बड़ा सा बोर्ड देखा, तो that reminds me of your talk actually. 99.9% virus free. Hygiene. Hygiene. Hygiene factor. So that's many families are looking for that actually. Absolutely. And that is just opposite to the main, wholesale market shop, Yes. medicine shops. Yes. In Dilkusha market. And it is in a clustered area, Yeah, but it yeah. is a standalone building, Yeah. and it is offering those services which we can otherwise not think of. Perfectly. और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, जब हमारे टाइम में मूवी एक ही लगी होती थी एक थिएटर में. Now you have the option. अब तो गदर 2 की आवाज साथ वाले हॉल में सुनती है. Yes. यहाँ नहीं जाना तो वहाँ चले जाओ, वहाँ नहीं जाना तो वहाँ चले जाओ. मैं तो देख This is लिया. what innovation is all about. Who puts atta in noodles? Why did they put atta in noodles? हेल्थ मैदा. Whose health? सर हमारी. ये सिर्फ इंडिया में ही है. ठीक है कि नहीं? थोड़ी Nobody, steep nowhere, facts nowhere हो across जाता the globe they have put atta noodles. They have made atta noodles. Maggi has customized its product as much as possible. That is why innovation. So people stopped eating Maggi after some problem. So they said, okay, we'll launch oat noodles. We'll launch atta noodle. We'll launch this noodle, that noodle, and it became success. Right? ये तुम्हें पता ही है. ये बताने की जरूरत ही नहीं है. This is the reason because of which Indians have become actually social. Right? Indians are the one particular society which has never been so social, but now they are extra social, right? But WhatsApp also, you know it, right? Amazon. Drone. Drone. The innovation is drone, and it is the biggest innovation now. Right now, it is like going by leaps and bounds. How we are using drones in all kind of areas, including technological and non-technological. Now you have the idea. What is innovation? Now you have to remember that whatever the idea you are going to keep in your mind or propose to somebody, it has to have
fulfillment of the need better than existing product. If there is no innovation, there is no idea. Let me tell you. Okay? 3 stages of business planning. I'll just hush up. ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है. हम इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे. पहली चीज़ है आपके पास आइडिया होना चाहिए. अगर आइडिया हो जाएगा फिर क्या होगा? फिर हम उस स्टेज पे आएंगे जहाँ पे हम आज डिस्कशन करेंगे. That is business model. And finally we'll have the business plan. Someday I will come over. अगर आप business model बना लेते हो, how many of you are having some idea in your mind going on right now? कि मैं ये plan कर सकता हूँ. How many of you have the goal ultimately that is to go to Shark Tank someday and propose your idea over there? How many of you have seen a Shark Tank? हाथ ऊपर खड़े करो अच्छे से. काफी कम है. शार्क टैंक. So सितंबर अक्टूबर में ना एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है. So you must watch that particular program, and that is a program which is going to be motivating you to develop some idea, work on it, and make it a $1 million idea. Okay? तो एक टर्म है, नोट करो. You all have notebooks with you? फोन पे नोट कर लो अगर in case. That is the word is unicorn. और ये ढूंढना, इसके बारे में पढ़ना, you will be amazed that what basically unicorn is all about. Okay? Unicorn, UNICORN. Okay? I will tell you if we get the time. Business idea. ये हमें पता चल गया. Business idea should fulfill an unmet need. Yes or no? Yes. Okay. Secondly, focus on problem solving. Provide easy solutions, not difficult solutions. Idea can come from anywhere. कहीं से भी आ सकता है. मॉल में, जैसे सर ने कहा, मॉल में घूमते घूमते आइडिया आ गया. घर पे बैठे हो आइडिया आ गया. मुझे तो सबसे ज़्यादा आइडिया आते हैं जब नहाता हूँ. पता नहीं क्या बात है, सारे आइडिया तभी आते हैं. आज भी कोई प्रॉब्लम थी इस पीपीटी में, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को ये कैसे समझाऊँ. जब मैं नहाने गया 2 मिनट में समझ आ गया. So you have to find, it's a trigger point, you know, it's a trigger point. Everybody of us has a trigger point. वो हमें ढूंढना पड़ता है कि ट्रिगर कब दबता है. कईयों के पापा की चप्पल से ट्रिगर दब जाता है तो भाई हाँ पापा मैं करूँगा. कईयों का हटता है भी मम्मी ने राजमा चावल बनाए, हाँ अब ठीक है, now I'm feeling better, now I have an idea. Yes or no? You have to identify your trigger point. Idea must have some technology intervention. This is very very important. Without technology there is no idea. Yes. Remember that. Yes. Right? ये एक बड़ी गड़बड़ है. Idea. जब बच्चे आते हैं ना, बच्चे आके मेरे को कहते हैं सर आई हैव एन आइडिया. मैंने कहा हाँ बताओ. सर इट्स $1 billion आइडिया. You know what is a unicorn? मैंने आपको unicorn लिखवाया. When the value of that idea, value of the sales, sorry, the value of that particular total value of that idea, were put by the investors is $1 billion. That is called unicorn. पिछले 8 महीनों में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एक भी यूनिकॉर्न नहीं आया. जो पिछला यूनिकॉर्न आया था वो था जो आपने बड़ा पॉपुलर नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला. ट्यूशन पढ़ा के ट्यूशन पढ़ाए, ट्यूशन है ट्यूशन, फ्रैंकली स्पीकिंग. Yes, sir. But he has used, that is the important thing, he has used Technology. and today that is a Unicorn. 8,300 crore idea. 1 billion is 8,300 crore. 83 रुपए का डॉलर है. So if your value of the idea is 83,000 crore, then how a she sir can say over here that the value of the idea is 0? Let me tell you the story about that. 2 स्टोरी सुनाऊंगा. पहली 2019 में इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी, 18 में शायद, सॉरी 1 साल पहले, इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम फ्लिपकार्ट था, अभी भी है. Yes, sir. दैट वाज एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट. कितने में बिकी? $17 बिलियन में. 17 मतलब 17 मल्टीप्लाई बाय 83 तो छोड़ दो, चलो डॉलर तो 80 रुपए का होगा, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 8 1,26,000 करोड़ शायद बनते हैं अप्रोक्सीमेटली. 2009 में 2 फ्रेंड्स ने, सचिन बांसल और बिनी बांसल ने फ्लिपकार्ट शुरू की थी 10 लाख रुपए से. किस काम से शुरू किया? जो काम उन्हें आता था. अमेजन में काम करते थे पहले यूएसए में. वहाँ से जॉब छोड़ के एक आईटी का पास आउट था, दूसरा थापर का था. दोनों ने कहा जी हम कंपनी लॉन्च करते हैं, यहाँ पे भी इंडिया में भी किताबें बेचते हैं. किताबें भी कौन सी? टेक्स्ट बुक नहीं, रेफरेंस बुक. टेक्स्ट बुक क्यों नहीं? तो ये भी easily बहुत available होता है. क्या? Easily available होती है ना टेक्स्ट बुक. गुड. But इसी में- अभी भी कई तुम लोग टेक्स्ट बुक्स, मेरे ख्याल में काफी टेक्स्ट बुक्स अमेजन पे खरीद रहे हो, है कि नहीं? एनीहाउ वी विल डिस्कस इट समडे, राइट? तो रेफरेंस बुक से स्टार्ट किया. उनके साथ 139 और कंपनियां थी जो स्टार्ट हुई, जिनमें से एक का नाम था स्नैपडील.
कुणाल सरनेम भूल गया, बहल। कुणाल बहल। सबसे बड़ी फंडिंग कुणाल बहल को मिली, किससे? जैक मा से, अलीबाबा ग्रुप। और इनको सबको लगा भी स्नैपडील तो जी आगे निकल जाएगी, बट नो, फ्लिपकार्ट सर्वाइव्ड। टुडे स्नैपडील इज इनटू बैड सिचुएशन, बट फ्लिपकार्ट इट सोल्ड फॉर $17 बिलियन, यानी कि 10 लाख रुपए लगा के उन दोनों को $1-1 बिलियन मिले थे, यानी 8300 करोड़ रुपए मिला, 5-5 लाख रुपए लगा, राइट? दैट इज व्हाट बेसिकली इज वन थिंग, कि आइडिया की वैल्यू क्या रही, इतनी ज्यादा बढ़ गई, बट आइडिया तो सबके पास था। अगर वैल्यू आइडिया की होती तो फिर तो हर कोई जो है वो इतने पैसे कमा लेता, फिर बाकी क्यों नहीं सक्सेसफुल हुए? बिकॉज द वैल्यू ऑफ द आइडिया डजंट लाई इन द वैल्यू इन द आइडिया इटसेल्फ, द वैल्यू ऑफ आइडिया लाइज इन इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ सोचने से आइडिया बड़ा नहीं होगा, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, उसकी एक एक छोटी छोटी चीज को समझना होगा, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड बी implementing it just like as if it is a matter of life and death for you. Then only it will become a unicorn, and then only you will become a super athlete. Okay, so what is the value of the idea? इसलिए कोई भी स्टूडेंट आगे मेरे को कहता है ना सारे $1 बिलियन आइडिया, मैं क्या आइडिया $1 बिलियन नहीं है, आइडिया की वैल्यू तो 0 है। आज भी तुम एक सुपर स्टोर खड़ा करके तुम आज भी कोशिश कर लो, तुम आज भी 8,000 करोड़ की या $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज तुम्हारे में प्रॉब्लम है कि तुम उस पर काम करने को कितना तैयार। ओके, देन इज द बिजनेस मॉडल कैनवस। जब आइडिया आ गया, फिर इस कैनवस को फिल करना है आपने। इसमें 9 कंपोनेंट है। सबसे पहले वैल्यू प्रोपोजिशन, आप कस्टमर को वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो, व्हाई शुड द कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट। नंबर 2, हु इज योर कस्टमर, Who is your target segment? जिम कौन जा रहे हैं? यंगस्टर्स, राइट? और मैं जिम रख लूं जिसमें रखूं ओनली 45+, मे बी आई कैन डू दैट। जिन लोगों ने वेट लॉस करना है मेरे जैसे, दे कैन गो ओवर देयर, बट देन द टारगेट सेगमेंट इज वेरी स्मॉल। यू हैव टू रिमेंबर दैट। हु इज योर कस्टमर? कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे बनाओगे, उसको क्या चीज अट्रैक्ट करेगी कि वो बार बार तुम्हारे पास आए। क्यों जाते हैं हम बार अमेज़न पे परचेज करने के लिए, क्यों जाते हैं Myntra पे? वैरायटी, डिस्काउंट्स, वैल्यू एडेड एडिशंस, डिस्काउंट ऑन क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा। दैट इज हाउ बेसिकली वी बिल्ड अप द कस्टमर रिलेशनशिप। बट प्राइमरीली हम वैल्यू के लिए उस चीज पे जाते हैं। इस पे हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ। फिर आपने उस चीज को डिलीवर कैसे करना है, ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है, दैट इज द चैनल, राइट? देन उस डिलीवरी के लिए और वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। स्टोर बनाना है, एयर कंडीशन होगा कि नहीं होगा, दरवाजा ग्लास का होगा कि नहीं होगा, ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर, दोज आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस, दैट इज की रिसोर्सेज। किसको हायर करना है, कितनी सैलरी देनी है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, कैसे बात करनी है, कितनी प्रोडक्ट्स रखनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एवरीथिंग हैज टू बी इन दिस। पार्टनर कौन होंगे, हु विल प्रोवाइड यू मटेरियल, सर्विसेज, राइट? एक्टिविटीज हो गया, पार्टनर्स हो गया। फिर आगे रिसोर्सेज, आप कौन कौन से रिसोर्सेज हायर करोगे, कौन कौन से रिसोर्सेज एंगेज करोगे। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, चलो बाद में देता हूँ, वैल्यू के साथ ही दूंगा। देन व्हाट आर योर कॉस्ट और कहाँ से आएगा रेवेन्यू। लिंक्डइन रेवेन्यू कहाँ से कमाता है? लिंक्डइन का नाम सुना है किसी ने? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड। ये हाथ खड़ा करना गया हुआ, हाथ खड़ा करना तो पूरा करो, नहीं पता तो फिर नहीं पता। लिंक्डइन रेवेन्यू कहाँ से कमाता है? चेक शर्ट, नहीं पता। एनीबडी एल्स? अभी तो मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा या लिंक्डइन ऐसे बड़ी कंपनीज उनके साथ जो पार्टनरशिप में आए हैं कि अपने को अक्सर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली एम्प्लॉयज ढूंढती हैं कंपनियाँ, तो उनके साथ रिलेशन हो। Absolutely right. LinkedIn has become the largest recruitment portal. Yes sir. Largest recruitment portal. उससे पहले Monster, नौकरी, ये recruitment portal होते थे, अब LinkedIn बन गया, right? अब ये तो easy question था, difficult question. WhatsApp revenue कहाँ से कमाता है? पता है कि WhatsApp के लिए Facebook ने कितना पैसा दिया? Any idea? सेम कंपनी से जो ऐड आते पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो।
वो तो मुझे पता है तुम आंसर दे लोगे, तुमने जैसे स्टार्ट किए। कितना पैसा दिया व्हाट्सएप के लिए फेसबुक ने? इट्स $19 बिलियन, यस सर। 1,44,000 करोड़ बिजली करता है। और एक छोटी सी ऐप के लिए 50 बंदों की टीम थी जिन्होंने लेबोरेटरी में बैठ के व्हाट्सएप डिजाइन और वो किया था, डेवलप किया था। दिस इज द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। यस प्लीज, आप बताइए। सर कि फेसबुक के साथ लिंक होने के बाद उनका इंटरेस्ट की चीज़ें व्हाट्सएप पे आने लगती हैं, जैसे मिंत्रा का आ जाता है आजकल कि अगर मिंत्रा की 2 दिन ऐप खोलो तो तीसरे दिन व्हाट्सएप में खुद आ जाता है कि दे आर डिस्काउंट्स एंड ये वो, तो उस वजह से मे बी क्रॉस प्लेटफॉर्म एडवर्टाइजिंग योर यस यस but it still is in the very nascent stage. It is growing, but it's a very low. WhatsApp, Facebook doesn't want to use WhatsApp for advertising. Let me tell you. Okay, they are just doing it on experimental basis. We'll discuss it someday. Then revenue आ गया, cost आ गया, अब आ गया ये सारी उसकी डिटेल है जो बिजनेस मॉडल कैनवस। हम ये नहीं कर रहे हैं आज, ये हम कर चुके हैं, किसी और क्लास में मैंने करवाया था। आज हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, ठीक है? आपको समझ में भी आएगा। हमने इसमें सिर्फ 2 चीजों पे फोकस करना है आज। वन इज वैल्यू प्रॉपोजिशन, सेकंड इज कस्टमर सेगमेंट। ओके, आज हमने सिर्फ 2 इन चीजों पे फोकस करना है। बाकी चीजों पे अगर किस दिन हम सेशन करेंगे बिजनेस मॉडल कैनवस का तो हम डिटेल में उसमें भी कवर करेंगे, राइट? वैल्यू प्रॉपोजिशन क्या चीज है? सबसे पहले ये चीज, और दूसरी चीज आ गई कि आपका कस्टमर कौन है और उसकी नीड्स क्या है। वैल्यू प्रॉपोजिशन वो है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ और कस्टमर वो है जिसको वो चीजें चाहिए। और अगर वो दोनों को मैं मैच कर देता हूँ, जो उसको चाहिए और जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, then there is no challenge. That is what basically we call it as fit, FIT. Okay, we'll discuss it in detail. Let's go step by step. Value proposition canvas. Business model canvas हमें ये बताता है कि हम बिजनेस के लिए वैल्यू कैसे क्रिएट करें। ओके, कि बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, बिजनेस कैसे अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंचेगा और अल्टीमेटली रेवेन्यू अर्न करेगा। कॉस्ट से कम होगा, रेवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा होगा एंड इट विल ऐड वैल्यू। ओके, बट वैल्यू प्रॉपोजिशन कैनवस क्या बताता है कि हम कस्टमर के लिए वैल्यू कैसे ऐड करें। 3 स्टेप्स हैं। पहले कस्टमर प्रोफाइल बिल्डअप करना है, फिर वैल्यू मैप डेवलप करना है, तीसरा दोनों को फिट कर देना है। ये देखो सबने डायग्राम पोस्टर पे भी बनाई थी। तो दिस इज द वैल्यू मैप, दिस इज द क्लाइंट प्रोफाइल एंड वी आर गोइंग टू फिट इट। ओके, दिस इज द कस्टमर प्रोफाइल। इसके 3 कंपोनेंट हैं, जॉब्स, गेन्स एंड पेन्स। पर उससे पहले जो एक चीज है जो मैंने आपको कही थी, हमारे में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमंस में। हम लोग ये सोच के चलते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है और दूसरे को कुछ नहीं पता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जबकि प्रॉब्लम बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आपको कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके, अंडरस्टैंड करके और उसको जो है वो सामान बेचना है, माल बेचना है, सीधी सी भाषा में। तो सबसे पहली जो चीज है जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, दैट क्वालिटी इज, मैं अगर बच्चों से पूछता हूँ ना क्लास में कि एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटी होगा, तो ये रिस्क टेकिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है एम्पैथी होनी चाहिए। व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज नॉट सिंपैथी। ये दोनों वर्ड सिमिलर लगते हैं बट इट इज डिफरेंट। एम्पैथी इज जब आप अपने आप को दूसरे के शूज में डाल के देखो कि ये बंदा कैसे सोच रहा है, ये बंदा क्या सोच रहा है। जब तक हम अपने शूज में रहेंगे ना, यानी कि मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, सर्विस प्रोवाइडर के शूज में, हम कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकते। हमें कस्टमर की शूज में जाके उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना है, तभी हम उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, इट्स ऑन फनी साइड बट इट्स वेरी रेलेवेंट। सर ऑडियो ऑडियो से जिसके साथ आया हूँ सर। चाचा तो आप अच्छा देखोगे क्या? जैसे सब्यसाची क्या वो जानी? आजकल वो दीपिका अच्छा हीरो बता दो नहीं, जैसे करीना कपूर की या फिर कलर समझा दो। वो जो बर्स्ट पे ऐसे वो जो फिटिंग वाली। मम्मी
तू ना बेटा इंटरव्यू ले ले हमारी। अभी तक कुछ ठीक से दिखाया नहीं और सवाल 1000 पूछ लिए। कमाल कर रहे हो आंटी जी। मतलब बंदे को दिमाग में आइडिया तो होना चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए। नहीं चलो कोई नहीं, अब आपको एक ऐसा पीस दिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा वो पीस। लिखवा लो मेरे से, लिखवा लो। दिखाओ ना भैया जी, वाकई में मैं तूने उसके वर्ड नोट किए, उसने क्या कहा? वो हमसे पूछ रहे आपको क्या चाहिए, और हम वही कह रहे थे ना कि कस्टमर को पूछोगे आप कि तुझे क्या चाहिए, तो कस्टमर क्या कहेगा? कुछ दिखाओ यार, मुझे क्या पता, तुम दिखाओगे तो पता चलेगा। You're getting the point? This is the starting point. जब कस्टमर इस तरीके से बिहेव करेगा कि वो आपको कह रहा है कि आप बताओ आपके पास क्या है, मैं उसमें से डिसाइड करूंगा, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसका मतलब है कि कस्टमर के दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, राइट? बट उसको ये भी करना है कि उसको मोल्ड करने लग जाओ, जैसे ही इज ट्राइंग टू डू दैट इज रॉन्ग। कि मैं तो ये लाल लहंगा ही बेचूंगा क्योंकि मेरे पास तो यही है, दैट इज रॉन्ग। यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ द बॉस विल एंटर एंड देन यू विल सी दैट हाउ द थिंग्स विल चेंज। ओके? हाँ गारंटी लोई, ये लोई। आया ना, आया मजा? इस पीस को पहन के आप बहुत हैंडसम लगोगे। स्वीट तो है भैया जी, लेकिन पहले ना मुझे ओरिजिनल वाली पैम्फलेट दिखाओ। वैसे आप बेहतर लगोगे इसमें, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी हाँ, दिखाओ तो ना। कंपेयर कर लो जी, एकदम जीरोक्स कॉपी वाली है जी। कोई क्या है गलत है? अरे भैया जी, इसका तो कलर फेड है, देखो ये लाइट वाइट है, ये ब्राइट वाइट है, फर्क और है। डिजाइन में भी कितना फर्क है। और देखो ऐसे क्या फिटिंग दी है, इतनी प्यारी फिटिंग दी है यहाँ से। लड़की की फिगर भी तो देख लो। मम्मी हमारा तो टाइम खराब कर रहा है। तो चल यहाँ से इंसल्ट कराने नहीं आए, ओके? हाँ केजी कम हो जाएंगे ना, कैटरीना से ज्यादा और लगी नहीं मैं। Now he has offended the customer, right? वैरायटी दिखाने के पहले सोसाइटी की समझना जरूरी है। अरे ये तो देख ले कौन कहाँ से आ रहा है, किसको क्या डिजाइन पसंद आ रहा है, कौन सा कलर किसको भा रहा है, ये सबका पूरा आइडिया लग जाए ना, उसके बाद एक कड़क पीस दिखा, मन को भा जाए। माई सेल्फ राज बत्रा जी, ओनर ऑफ बत्रा फैशन स्टूडियो। ऑनर। अरे हाँ जी बहन जी, क्या दिखा दो? मीन्स कोई हैप डिजाइनर का कुछ दिखाइए। ओ आप तो करीना जैसे लगते हैं, आपको तो मनीष मल्होत्रा पसंद आना है, मुझे पता है। का कलर रिजेम्बलेंस है। चलो ऊपर से मनीष मल्होत्रा का लहंगा उतार ला। वही तो दिखाया है। ऊपर वाला जमा तो नीचे वाला लिया, नया वाला लिया, जिस पन्नी भी नहीं पड़ी अभी तक, वो लिया। नया वाला? वो ऊपर से नीचे तो जाना है, सवाल भी कर रहा है, नया लिया। बहुत सवाल पूछता है, बड़ा चैन। हाँ जी क्या लेंगे, चाय या कॉफी? देखो जी इनकी तो शादी हो रही है, इनको तो अब कुछ दिन डैड को गिफ्ट आप बता दो आपके लिए क्या मंगा दूं? फलूदा की लस्सी? जी वो लस्सी तो हैवी हो जाएगी। आप डॉली से पूछ लो, इसका डॉली मन से है बोलो, तो। मन है आपका, दिल कर रहा है ना? तू बता, तू खाएगी? खाना चाहते हो आप? चल तू फलूदा मंगाएगी तो तेरे साथ चलो share ऐसे करेंगे। करते हैं, हम लाइट रखेंगे, एक फलूदा शेयर कर लेंगे आपस में। हाँ जी इतनी डाइटिंग भी साफ की। बिल्कुल। थोड़ा सा महंगा दिखा रहा हूँ, फलूदा ले आ। हाँ? फलूदा ले आ, थोड़ी महंगी चीज दिखा रहा हूँ जी, लेकिन चीज ऐसी है कि छू के पसंद आ जाएगी आपको। ये माल क्या है, इस माल में पता नहीं है जी, ये तो आता है सीधा वीआईपी को चला जाता है। मनीष मल्होत्रा लेटेस्ट ब्राइडल कलेक्शन फर्स्ट कप देखिए। मनीष मल्होत्रा, हाँ? दुल्हन से अच्छा कोई लग गया ना, बंदे ने डिजाइनिंग ही छोड़ देनी है। ऐसे में 2-3 और दिखाइए ना डिजाइन प्लीज। हाँ और तो 2-3 आपने देख ली है ना, 2-3 बार शादी का मन हो जाएगा आपका। वो ले 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 आओ, ट्रेडिशनल वाला ले आ। ये हैवी दुपट्टा ट्रेडिशनल, लड़के के माता पिता देखे ना फिदा ही हो जाएंगे, है जी? ये हो गई बैकलेस चोली, ये मॉडर्न। अजी दूल्हे की जब नजर पड़ेगी ना, नजर हटा नहीं पाएगा वो। ये हो गया ट्रेडिशनल, ये हो गया मॉडर्न, ये ट्रेडिशनल, ये मॉडर्न। अरे फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। इनकी बातें सुन के तो दोनों प्यारे लग रहे हैं। दिशा दिखा दूं? समझ में नहीं आ रहा। So this is what basically the story is. Same product, same quality, but when it is sold by listening to the consumer, understanding the need of the consumer,
then you can sell it very easily. Okay, so you got the point. Movie देखी हुई है? It's a beautiful movie. Which movie is it? हिंदी मीडियम English medium. इंग्लिश मीडियम English medium. Hindi medium was the number 2. It was English medium, right? You must watch it. It's a beautiful movie. Okay. Now what basically is there? How will you basically step into the customer shoes? So there is a 5-step process is there for that. Okay. First is select the customer segment. जैसे मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा, इन्होंने कहा कि टीचर से, लॉयर से, I will ask. How do you know that you have to ask the teacher or the lawyer only? First of all, you need to identify the customer segment for your product. You are getting it? सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि मेरी कस्टमर का segmentation is very important. What is the age group? What is the literacy level? What is the gender? What is the social background? What is the income background? Write that down. Identify that ये लोगों से ही पूछना है, इनसे नहीं पूछना है. That is how basic, because for every customer segment, the need is going to be different. I go to McDonald's because of the hygiene. My son goes to McDonald's because of Happy Meal. You need to identify the need of the consumer. That is the first and the foremost thing. Okay. Second is identify the customer jobs. What are jobs? We'll discuss it. Then identify the customer pains. Then identify the customer gains, and then build up the profile as such. What are this? What is the customer jobs? First of all, this is the basic requirement from the product. अगर मैं कार ले रहा हूँ तो what I'm expecting from the car? क्या मेरे को क्या expectation है कि उसमें क्या क्या fulfill होना चाहिए? तो उसका माइलेज अच्छा होगा. Forget about the segment. क्या क्या चाहिए? कार की basic requirement will be the same. Almost for every, I agree with you that for customer segment it will be different. ठीक है कि नहीं? वो value addition और value addition है. वो हमारी gain है. Right? That is not going to be job. Jobs is कि मैं एक अगर product ले रहा हूँ तो मेरी बेसिक उसमें से रिक्वायरमेंट क्या है. हम ओला और उबर की एग्जांपल लेके चलते हैं. ओके, जब मैंने ओला और उबर का टैक्सी हायर की तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी बेसिक कौन सी नीड फुलफिल हो रही है, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ उसमें. इट शुड बी ऑन टाइम, नंबर 1. सेकेंडली इट शुड बी अ नाइस कार, क्लीन कार फ्रॉम इनसाइड, राइट. नंबर 3, इट शुड नॉट ब्रेक डाउन ऑन द रोड, खराब नहीं हो जानी चाहिए. एसी चलता हो मिनिमम, दिस इज द रिक्वायरमेंट. कंफर्ट हो, सीट्स फटी ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो. ये जॉब्स हैं. स्मूथ हो, राइट स्मूथ हो, ड्राइवर पोलाइट हो, ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. दिस इज व्हाट बेसिकली इज कॉल्ड एज कस्टमर जॉब्स. ओके, जो बेसिक आपको यूटिलिटी चाहिए. फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है. I can take thousands of examples, but we have to understand what is jobs है. वॉशिंग मशीन से क्या चाहिए आपको? कपड़े धोती हो, साफ धोती हो, जल्दी धोती हो, अपने आप चले, मुझे हैसल ना हो, साबुन वगैरह मिक्सअप ना हो, कपड़ों से उतर जाए. दिस इज द बेसिक जॉब. इज इट क्लियर? देन सेकेंडली उसमें बेसिकली हम इसको 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. फर्स्ट इज फंक्शनल जॉब्स, जो हमने बात करी वो फंक्शनल जॉब. सेकेंड इज अ सोशल जॉब. अब आप ओला और उबर में बैठ रहे हो, राइट? तो नॉर्मली लेट से क्या आपके घर में कार नहीं है, लेट से हम अज्यूम करें कार नहीं है. तो जब आप कार में बैठे तो इनिशियली जब ओला और उबर जब चली तो ये भी लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब लोगों ने शादियों में जाना होता था तो ओला और उबर को बुलाते, राइट? क्यों? सोशल वैल्यू ऑफ राइडिंग इन अ कार. शादी में जाना है, सेफ्टी चाहिए, रात को शादी से वापस आना है, ड्रेस्ड अप होंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, बाइक पे नहीं जा सकते 4 बंदे. दैट इज व्हाट बेसिकली वाज द सोशल वैल्यू. देन इमोशनल वैल्यू और पर्सनल वैल्यू. मेरा ड्रीम है कि मैं कार में, जिस दिन मैं पहले दिन ऑफिस में जाऊं, मेरे पास मैं कार में बैठ के जाऊं. आई कांट अफोर्ड अ कार बट आई कैन अफोर्ड ओला और उबर. दैट इज माय इमोशनल और पर्सनल जॉब. एंड फाइनली सपोर्टिंग जॉब्स. इसमें 3 चीजें आ जाती हैं. फर्स्ट इज बायर ऑफ वैल्यू. जब आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए किसी वेबसाइट पे जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो
तो यू आर बेसिकली क्रिएटिंग द वैल्यू ओवर देयर. सेकेंड इज यू आर क्रिएटर ऑफ वैल्यू. क्रिएटर ऑफ वैल्यू कैसे? जब आप अमेजन पे गए और आपने एक रिव्यू डाला कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, इसको मत खरीदना, then again you are creating a value for the product. And finally, when you are transferring the value, when you are giving the money after purchase, that is the transferring model. So this is what basically are customer job. अगर customer को इन सारी jobs में कहीं पे भी problem आएगी, for example, मैंने product purchase कर ली Flipkart में, जब मैं transfer करने लगा उसका वो गेटवे होता है सर, गेटवे नहीं चला, यूपीआई नहीं चल रहा, यूपीआई नहीं है सर, क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा जी, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, यू विल नॉट गो टू दैट, द वैल्यू इज नॉट फुलफिल्ड. एज अ कस्टमर योर वैल्यू इज नॉट फुलफिल्ड. ओके, इज इट क्लियर? कंटेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. कस्टमर की जॉब को आइडेंटिफाई करने में कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैकडोनल्ड पे जाते हैं तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है कि वहाँ पे क्यू नहीं होनी चाहिए, पर अगर वहाँ पे लाइन लगी हुई है और अगर आप पेरेंट हो तो आप हो सकता है कि आपको कहें छोड़ो यार कहीं और चलते हैं. पर अगर बच्चे हैं सिर्फ एक पार्टी के लिए आए हैं, वो कहेंगे कोई बात नहीं, हमें तो टाइम ही पास करना है, 1 घंटा नहीं तो 1.5 घंटा से 2 घंटे से. सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द कंटेक्स्ट इज देयर व्हिच विल बी डिफरेंट फॉर एवरी कस्टमर. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट. ओके, कस्टमर पेन्स. सेकंड इज कस्टमर पेन्स. ये वो चीजें हैं जो कस्टमर को अनॉय करती है बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर ट्राइंग टू गेट द जॉब डन, या उसको प्रिवेंट करती है फ्रॉम गेटिंग अ जॉब डन. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि पेमेंट गेटवे नहीं चल रहा जी, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेन. ओला और उबर की फिर एग्जांपल पे आते हैं. वहां पे आपकी पेन क्या हो सकती है? क्या प्रॉब्लम आती है आपको ओला और उबर में? क्या आ सकती है फॉर दैट मैटर, जो कि आपकी उस जॉब को और उस वैल्यू को फुलफिल करने में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दे. सर फर्स्ट तो वही हो गया, पेमेंट का हो गया. दूसरा हो गया ड्राइवर पोलाइट ना हो, वो टाइम पे नहीं आया, गाड़ी अंदर से गंदी है, राइट? दीज आर ऑल गोइंग टू बी योर पेन्स. जब तक ये पेन्स रिमूव नहीं होंगी, यू विल नॉट सी वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? और उसके अलावा अगर उस प्रोडक्ट को यूज करने में किसी तरह का कोई रिस्क इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम विद द गर्ल्स ट्रैवलिंग इन एट नाइट इन मेट्रो सिटीज थ्रू ओला एंड उबर, देयर हैज बीन सम कंसर्न्स, सो दैट इज आल्सो इज वन ऑफ द पेन इज देयर. ये पेन आपको रोकेगा कि आप उस तरफ ना जाओ, आप उस चीज को ना लो. आप टैक्सी के 1200-1500 देने को तैयार हो जाओगे, आप कहोगे यार ओला उबर से नहीं. ओके, सो दैट इज व्हाट बेसिकली इज द पेन. अनडिजायर्ड आउटकम्स, ऑब्स्टेकल्स, रिस्क, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है? देन नेक्स्ट इज, जब आपने किसी भी कस्टमर से उसके पेन पूछने हैं, ये ध्यान से देखना, आपने इसके ऊपर एक असाइनमेंट करनी है अभी. एवरीबडी हैज टू डू वन असाइनमेंट. सो ये क्वेश्चंस याद कर लो, दिमाग में फ्लैश में डाल लो. हाउ डू योर कस्टमर्स डिफाइन टू कॉस्टली? पेन क्या होता है? पेन ये है कि मैं उससे सर्विस को अवेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है. ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू यूज इट, राइट? सेकेंडली, व्हाट मेक्स योर कस्टमर्स फील बैड? अब इसमें क्या है? टू कॉस्टली. ओयो ने क्या किया? ओयो ने कस्टमर्स को पूछा कि आपको एक कमरा चाहिए, कितने पैसे देने को तैयार होगा? उन्होंने कहा जी 2000 दे देंगे. वो कहते हैं अगर हम 1500 में दे दें? उन्होंने कहा ठीक है. एंड ही मेड अ बिजनेस मॉडल आउट ऑफ इट. 1000-1200 रुपए में ओयो का कमरा मिल जाता है. कस्टमर की बहुत बड़ी पेन जो है वो सॉल्व होगी. बट ही आस्क्ड इट वेरी स्पेसिफिकली कि हाउ मच इज कॉस्टली फॉर यू? क्या 1200 कॉस्टली है कि 1500 कॉस्टली है, 2000 कॉस्टली है? कस्टमर से बड़ा डिस्क्रीटली और क्लियरली पूछना है, अदरवाइज आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग नहीं कर पाओगे. अगर आपने कस्टमर से उसका पेन पूछना है, अब मैकडोनल्ड में गए, ठीक है, वहाँ जाके पूछा कि अच्छा बर्गर खाना है, तो यार यहाँ तो बड़ा महंगा है, ये तो 150-200 रुपये का बर्गर दे रहे हैं. तो प्रॉब्लम क्या आई
you will move away. तो उनसे ये पूछना जरूरी है कि आपको कितने का बर्गर चाहिए, और उसी चीज़ के लिए मैकडोनल्ड ने आलू टिक्की बर्गर सबसे सस्ता रखा हुआ। कहते हैं भगवान के घर से कोई खाली हाथ ना जाए, मैकडोनल्ड भी भगवान बना हुआ। ओके, सो व्हाट मेक्स योर कस्टमर्स फील बैड? पेमेंट गेटवे नहीं चल रहा, ड्राइवर वो है पोलाइट नहीं है, राइट? हाउ आर करंट वैल्यू प्रोपोजिशंस अंडर परफॉर्मिंग फॉर योर कस्टमर? जो प्रेजेंट जो वैल्यू प्रोपोजिशन जो मिल रही है हमें उस प्रोडक्ट से, वो किस तरीके से ठीक नहीं है? मतलब फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन ली, कपड़े साफ नहीं धोते, तो क्यों, कितने साफ नहीं धोते? क्या आपको और ज्यादा साफ चाहिए? क्या प्रॉब्लम आती है? कप पे मिट्टी रहती है, नीचे पैंट के नीचे मिट्टी रहती है, राइट? गंदे रहते हैं, पूरा प्रॉपरली शाइनिंग नहीं आती, सूखते नहीं प्रॉपरली। व्हाट इज दिस? दिस इज अंडर परफॉर्मेंस। कस्टमर से, अगर कस्टमर से जाके सीधा पूछोगे ना क्या फीचर चाहिए, मैं वही आंसर क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, वो नहीं बता पाएगा। पर अगर आप उससे ये जाके पूछोगे भैया एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में, सॉरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, देन इट विल टेल। ओके, वी आर आस्किंग इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली। What are the difficulties and challenges your customer encounter? What negative social consequences do your customers encounter or fear? क्या लगता है कि उसको भी कौन से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर मैं इस प्रोडक्ट को यूज करूंगा? मैं फंस जाऊं। कई बार होता है ना, आपको कॉल आती है तो कहते हैं कि सर हम जो है, सॉरी आप किसी मॉल में गए तो वहाँ पे कहते हैं कि ये लो जी एक गिफ्ट ले लो, तो आप फिर अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे दो, तो आप कहते हैं नहीं मैं नहीं दूंगा। क्यों? आप बहुत कॉल करोगे, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत करती हैं जैसे कॉल। दिस इज अ नेगेटिव सोशल, दिस इज नेगेटिव आउटकम। तो आपको कस्टमर को ये अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर इसको नेगेटिव आउटकम लेके चल रहा है, ये उसकी पेन है, इसको हमने दूर करना है, तो उसको कॉलिंग नहीं करनी है, राइट? दिस इज व्हाट बेसिकली ही इज स्केयर्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि अगर मैं कहीं पे नंबर दे देता हूँ तो मुझको कॉल्स आने लग जाती है, मैसेज आने लग जाते हैं। तो आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये उसकी पेन है और इस पेन को हमने दूर करना है। कैसे करना है वो अलग चीज है, वो विल कम टू दैट लेटर। व्हाट कीपिंग योर कस्टमर्स अवेक एट नाइट? जागते हो किसी चीज के बारे में सोच के, नंबरों के अलावा? सोशल मीडिया पे अपनी फोटो के बारे में सोच के कि कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, मेरी रील किसी ने देखी कि नहीं देखी, रात को हर 10 मिनट बाद चेक करना कितने लाइक हो गए। है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, एनीबडी फ्रॉम द लास्ट बेंचेस? नहीं, लाइफ में सब सही है। हाँ जी बेटा, सॉरी योर सर, द प्रोफेसर और स्टूडेंट? स्टूडेंट, हाँ जी हाँ जी बेटा। सर द रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, वेरी गुड, absolutely right, he's right. Refund policy and even return policy, that is what basically can keep you awake at night. That is your pain which is going to, which is your obstacle कि आप इस वेबसाइट पे जाओ कि ना जाओ। फेसबुक पे जाते हो ना, कई बार आप लोग फेसबुक भी यूज कर रहे हो अभी कि नहीं कर रहे हो? हाँ वो पता ही है मुझे। इंस्टाग्राम पे चले गए सारे, तो इंस्टा पे भी मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फेक सेलर्स आर देयर। तो एडिडास का जूता 800 रुपए का मिल जाता है वहाँ पे, तो वो फिर उसमें रिलायबिलिटी फैक्टर आ जाता है। दैट इज व्हाट बेसिकली विल बी अवेक एट नाइट वाला। व्हाट कॉमन मिस्टेक्स डू योर कस्टमर्स मेक? आर दे यूजिंग योर सोल्यूशन द रॉन्ग वे? एंड व्हाट बैरियर्स आर कीपिंग योर कस्टमर्स फ्रॉम अडॉप्टिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन? क्या उनको ये लगता है कि ये चीज़ बहुत महंगी है या इसकी यूसेज बड़ी डिफिकल्ट है? फॉर एग्जाम्पल आईफोन, ओके, बिकॉज द प्राइस बैरियर इज सो हाई, तो कंपनी क्या करती है, दे बेसिकली स्टार्ट गिविंग यू डिस्काउंट्स बिफोर लॉन्चिंग द न्यू मॉडल। दिस इज हाउ बेसिकली दे ओवरकम, ट्राई टू ओवरकम द पेन। ओके, थर्ड इज कस्टमर गेन, आउटकम्स एंड बेनिफिट्स योर कस्टमर वांट्स, कि उसको क्या फायदा होगा उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को यूज करने से। पेन इज व्हाट इज स्टॉपिंग हिम फ्रॉम यूजिंग इट, गेन इज व्हाट इज एक्सपेक्टिंग to gain by using it. You have to understand the difference between the two. Okay? Some gains are required, expected. For example, I'll come to that only. Required gains. When you use a mobile phone,
The required gain is that it should give you absolute clear clarity of the voice. Number 2, its battery life should be good. Number 3, we should be able to use the apps. Right? अगर हम apps download नहीं कर सकते, memory storage is a problem. That is a required, वहाँ पे required gain is affected. Second is expected gain. कई चीज़ें हम expect करते हैं कि ये फ़ोन अगले 4 साल तक भी चल जाएगा, इसकी updates मेरे को मिलती रहेंगी. It should be a secured system. जैसे 5G फोन आ गया. 5G फोन आ गया. So if I am buying a phone, it is 5G. So obviously I am having an expected gain, right? Desired gain, जो ना मिल रहा हो, हमें पता नहीं है, पर अगर मिल गया तो it will be very happy for us. We'll be very happy if we are going to get it without company telling us. So company is giving you some additional patches of software, some additional security features and all that. Those are the desired gains. And unexpected gain is where the company is making you happy. Delight. They are giving you something better than what you were basically expected of it. जैसे free वो आ गया, screen guard आ गया, free Samsung ने जैसे charger बंद कर दिए, but they might start giving charger to you, or they give you a coupon that you can buy charger at half a price in the market. That is an unexpected gain. What is the customer expecting? What is he trying to understand? What should be the gain? You need to write it down. What savings should make your customers happy? What quality levels do they expect? How do current value proposition delight your customers? What would make your customer job or lives easier? What positive social consequences do your customer desire? वहाँ पे क्या था? Fear. यहाँ पर क्या है? कौन से social consequences do they desire? कि मेरा आईफोन कोई देखे तो तीन कैमरा वाले वो लगे हुए हैं, it is a pro, so everybody will be happy. That is, I think, so distinguished between normal 14 and pro. Yes or no? So that is what basically is how do they provide the gain. Okay? What increases their power or the status? What do customers dream about at night? So here you are dreaming about कि मेरे फोन में से कुछ ऐसी कोई एप्स आ जाए जिसमें मेरे को पैसे मिलने शुरू हो जाए, समथिंग लाइक दैट, राइट? अनएक्सपेक्टेड. हाउ डू कस्टमर्स मेजर सक्सेस एंड फेलियर एंड व्हाट वुड इंक्रीज योर कस्टमर लाइवलीहुड ऑफ अडॉप्टिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन. फिर उसके बाद आपने इनको रैंक करना है. सारे जॉब्स जरूरी नहीं है. मैं ओला से एक्सपेक्ट नहीं करता कि अंदर मैगजीन भी पड़ी हो. सस्ती राइड दे दी यही बहुत है, राइट? पॉइंट टू पॉइंट राइड दे दी यही बहुत है. सो आई विल रैंक इट important to unimportant. Rank them 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Secondly, rank the pains. Extreme, ये सबसे जरूरी है, जो जिसके बिना मेरी काम नहीं चलेगा. And totally is the moderate, जिसके बिना मेरा काम चल जाएगा. अगर ये पेन ना भी address हो, still I am happy with it. And finally, essential, gains and nice to have gains. Okay, so you will rank them. This is what basically is customer profile. Is it okay? Right? अब कस्टमर से अगर आप ये पूछो कि प्रोडक्ट और सर्विस में नए कौन से फीचर चाहिए, तो वो आपको नहीं बता पाएगा. बट इफ यू आस्क थ्रू दिस पर्टिकुलर मैनर, यू आस्क हिम फर्स्ट दैट व्हाट आर द जॉब्स यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट. नंबर 2, व्हाट आर योर पेन्स which we can address in the future. And thirdly, which are the gains are there which you are missing right now, what you expect in the future. You will get the answer. Getting it? And then you will get the customer profile. This is customer profile. Second is value proposition. अब हमने क्या करना है? ये हमारी साइड वाली एक्टिविटी है. That was an activity in order to understand the customer. This is an activity in order to understand what we can provide. So we will work upon value map. It has got 3 components. First is whatever the product or services we are offering. Second is whatever the gains are there. And thirdly, which are the pain relievers. हम कस्टमर की पेन को कैसे रिलीव कर सकते हैं. I give you a very simple example. You tell me where does it fit. मैंने क्रॉक्स ऑर्डर की, you know क्रॉक्स, वो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ जो स्लीपर्स आती है, 3000 की क्रॉक्स. I ordered it on a Crocs website only.
बाई चांस साइज ना गलत ऑर्डर हो गया सैटरडे रात को ऑर्डर करी, संडे को बंद होती है उनकी हेल्पलाइन भी बंद, सब बंद। ऑब्वियसली दे हैव मेंशन्ड ओवर देयर दैट वी विल बी क्लोजिंग ऑन संडे। तो मैंने मेल डाल दी उनको सैटरडे नाइट कि आई हैव ऑर्डर्ड अ साइज 7 बाय मिस्टेक, काइंडली करेक्ट इट एंड गिव मी, सेंड मी ऑर्डर 9, राइट? नाउ दिस वाज माय पेन, right, which I expect that they should answer. They didn't answer on Sunday, so it's my pain. Monday morning I got a mail in my inbox. What do you expect? यूजर के हम प्रोवाइड कर देंगे, नाइन एक्सचेंज कर देंगे। The mail was, sorry, your order has not dispatched but already been confirmed. So what you do is that we will send the order, you return the order and then you place the new order. Right? So is my pain addressed? Answer is no. Okay, so you are getting the point. What is pain and how basically customer pain you can address, right? In this, there are 4 steps are there. List the product and services you are going to offer. Outline the pain relievers. Outline gain creators and rank them. Again the same thing. Almost a similar thing. Okay. Product and services. This is simply a list of what you offer. आप क्या क्या उसमें फीचर्स ऑफर कर रहे हो, आप कौन सी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो। तो ओला और उबर में आप क्या ऑफर कर रहे हो, राइट, बेसिकली। सेकेंडली, बंडल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हेल्प्स योर कस्टमर कंप्लीट आइदर फंक्शनल, सोशल और इमोशनल जॉब्स, एंड इट इज क्रूशियल टू एक्नॉलेज दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डोंट क्रिएट वैल्यू अलोन, दे क्रिएट वैल्यू ओनली व्हेन some pain is going to be relieved or some gain is going to happen. Okay, these are 4 types of products or services are there. One is tangible. Car is a tangible product. Services, insurance companies is a intangible. Digital, buying a software, buying an app, it's a digital product. And finally financial, if you are buying some financial investment, then it is going to be a financial product. Pain relievers, you know it now. I'm just skipping it for the sake of saving time. They generate savings, they make you feel better, they eliminate the risk, they make you sleep better, they limit your mistakes and they eliminate the barriers. Okay, so whatever you can do in order to eliminate the pains, that is what basically you are supposed to write over here. Okay, and finally, gain creators. Gain creators describe how a product services create customer gains. As with pain reliever, gain creator do not need to address every gain identified in the customer profile. सारे gain address नहीं करने। वो तो ये कहेगा कि अगर ओला और उबर वो लेट हो गया 10 मिनट, तो मेरे को जो है वो अगली राइड पे फ्री वो दे दो, रिफंड दे दो, राइट? You know how Domino's is able to deliver the pizza in 30 minutes? There is a whole story behind it. Yeah. Own delivery partners. They deliver by themselves. Yes, themselves. They deliver by themselves. पिज़्ज़ा हट चले जाओ, उनको वो 30 मिनट में पिज़्ज़ा चाहिए, क्या कहते हैं पता? चलो बाहर। They don't deliver. अब डोमिनोज ने क्यों अपने ऊपर 30 मिनट का डाल रखा है, वैसे सोचने वाली बात है। If the Domino's start saying that we will, अगर starting से that we will deliver in 45 minutes, तो क्या हो जाता? कोई आसमान टूट जाता? नहीं। But they have kept it at 30 minutes, right? So because they want to address the pain of a customer. Customer का pain क्या है? 30 मिनट के बाद पिज़्ज़ा ठंडा हो जाता है। And their plan is that is to deliver as early as possible. अब तो Zomato और Swiggy पे भी आ गया है। If you take a gold membership, they promise you one particular time. And if they do not deliver before that time, they give you extra coupons or some next order free, something like that. So what is it? This is basically is customer का pain क्या है कि खाना ठंडा हो जाता है, मेरे को दोबारा गर्म करना पड़ेगा। और पिज़्ज़ा तो obviously when you heat it again it loses its taste and value. Okay? Gain creators are savings, expectations, make life easier, positive social consequence, produce positive outcome, fulfill desires. Right? Fit is when you are going to match value proposition with the customer profile. Okay, ये fit मैं आपको यहाँ पे ले आता हूँ। 3 kinds of fit are there. This is last slide.
ऑफ दिस थ्योरी, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट इज प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट। जो आपने एक सोल्यूशन के प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए जो आपने सोल्यूशन बनाया है, इज इट द राइट सोल्यूशन और नॉट? If there is a traffic on roads, do you think so flying cars is the only alternative? Not at all. It is not a proper problem solution fit, because it requires huge change in infrastructure. Okay. Second is product market fit. Is the market ready for such product? When the market is not ready, because when you are going to launch the product thinking that we are launching something which is good, but actually market says it is not so good. Okay. And finally, बिजनेस मॉडल फिट। आपने पेटीएम खोल दिया, मोबाइल रिचार्ज कराना है 20 रुपये डिस्काउंट, 20 रुपये का रिचार्ज और कैशबैक, आटा लेके आना है 30 रुपये का कैशबैक, बिस्कुट का पैकेट है 10 रुपये का, 5 रुपये का कैशबैक। बिजनेस मॉडल इज इनटू प्रॉब्लम। आज तक पेटीएम नेगेटिव चल रही है। ओके, सो दैट इज व्हाट बेसिकली दैट यू हैव टू थिंक ऑफ। हम इस केस में आज में जो है वो हम इन दोनों फिट की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट। ओके, नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी बैचेस वी कैन मेक? वी हैव टू मेक 4 बैचेस। तो 1 2 3 आपका फर्स्ट बैच हो गया, उसके बाद आपका हो गया 1 2 3 4, आपका एक बैच हो गया। Okay, this is your batch, batch number 1. Your batch number 2, batch number 3. Raise your hands. जो जिनको पता लग रहा है मैं बोल रहा हूँ। Yes. पीछे एडिडास भी। जो ब्लैक टी शर्ट में है, हाँ जी सर 6 का। हाँ जी, लास्ट में हाँ जी raise your hand. Yeah, आपका बैच नंबर 3 है। Okay, and yours is batch number 4 at the last, second last and last. Okay, 5 6 7 and 8. It's okay. Who is batch number 7? Raise your hands. Batch 7. 6 of you. Batch number 5. Raise your hands. Batch number 6. Great. ठीक है। Yes, surely, yes. Thank you. ये लोग कम ला दिए, फिर ऐसे ही रिलैक्स कराएंगे ना 10 मिनट। Okay. I'm giving one sheet, so we have to give one sheet to every batch. One sheet to every batch. Only one sheet. ले लो। ठीक है। बैच नंबर 1 सॉरी 5 है ना? ये सबकी एक ही शीट है आपकी, ठीक है? आपकी एक शीट आ गई, बैच नंबर 2 गॉट द शीट। 3 4 शीट आ गई, बैच नंबर 4 हो गई 6 शीट। Okay, now I will give you one challenge for every batch. Okay, listen very carefully. Every batch is going to have one challenge, right? So what you have to do is you have to act as a value creator or a buyer. So we will have a batch number 1. You are going to be the buyers. You have to prepare the customer profile. Batch number 2, you have for the same product, you have to prepare, react as value creators. आपने वैल्यू प्रपोजिशन मैप बनाना है, ओके? जिसमें मैं दिखा दूंगा, कोई नहीं क्या क्या उसमें कंपोनेंट होंगे। बैच नंबर 3, यू विल बी द बायर फॉर प्रोडक्ट नंबर 2, चैलेंज नंबर 2। बैच नंबर 4, यू विल बी वैल्यू क्रिएटर फॉर प्रोडक्ट नंबर 2, चैलेंज नंबर 2। इज इट ओके? नहीं समझ में आएगा तो मैं आगे बता दूंगा, कोई बात नहीं, सुन लो। वैल्यू यू आर बायर फॉर प्रोडक्ट नंबर 3, you will be value creator for product number 3, buyer for value number 4 and value creator for, okay, clear? Yes. ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, ये लिखने के बाद 5 लिखने हैं आपने। जैसे बायर्स हो तो 5 जॉब्स लिखनी है जो उस प्रोडक्ट को से आप एक्सपेक्ट करते हो करेगी। 5 गेन लिखने हैं, 5 पेन लिखने हैं।
वैल्यू क्रिएटर्स ने 5 प्रोडक्ट फीचर लिखने हैं जो आप प्रोवाइड करोगे, 5 आपने गेन क्रिएटर लिखने हैं और 5 पेन रिलीवर लिखने हैं। आपस में सलाह नहीं करनी, ओके? आपने इनके साथ सलाह नहीं करनी, बैच नंबर 2 ने 1 के साथ नहीं करनी, 3 ने 4 के साथ नहीं करनी, और आपने किसी के भी साथ नहीं करनी, ओके? 8 ने 7 के साथ नहीं करनी, 6 ने 5 के साथ नहीं करनी, रादर किसी ने किसी के साथ नहीं, अपने बैच में करनी है। 6 से बंदे हो, 6 दिमाग है, बहुत है। प्रोडक्ट नंबर 1 चैलेंज फॉर बैच 1 and 2। सर इधर भेज दो, इधर खाली है।